Hi viewers, we are back in action today at Sri Balaji Action Medical Institute, Paschim Vihar, Delhi. As you are aware that today is a World Kidney Day, which is a global awareness campaign to raise awareness about the importance of kidney health. There has been several important questions about kidney health by the population at large, like why kidney health? What is chronic kidney disease and how big is the problem? What are the causes of chronic kidney disease? What are the symptoms of chronic kidney disease? And the most important part to address is what are the available treatment modalities for the screening of chronic kidney disease? How to prevent it? What are the newer drugs available for the treatment of kidney disease, which is called as a chronic kidney disease? And what exactly are the myths and the facts about kidney transplant? To address all these issues, today we have one of our prominent speaker, Dr. Rajesh Agrawal with us, who is the Chief of the Nephrology and the Kidney Transplant Sciences at Sri Balaji Action Medical Institute, Paschim Vihar, Delhi. So I would like to give this to Dr. Rajesh Agrawal, please, for addressing the population about the importance of kidney health. Over to you, Dr. Rajesh Agrawal, sir, please. Thanks, Vikas ji. Today is World Kidney Day, and I'll be talking about the create awareness about the kidney disease in the society. Kidney is a very important part in our body. हमारी किडनी में पेशाब बनता है. पेशाब के रास्ते नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलते हैं. सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस भी किडनी में ही मेंटेन होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है. इरिथ्रोपोइटिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो किडनी में प्रोड्यूस होता है, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है. कैल्सिट्रियोल एक अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो किडनी में बनता है, जो बोन हेल्थ मेंटेन करता है. जब किडनी खराब हो जाती है, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बोन हेल्थ वीक हो जाती है. नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल without the proper functioning of the kidneys. We have got two kidneys. There is, whenever there is a defect, structural or functional defect of both the kidneys are there, and लाइक यूरिन में प्रोटीन जाना शुरू हो जाए, यूरिन में आरबीसीज आने शुरू हो जाएं, या फिर आपके जो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी लेस देन 60% आ जाए, तो हम कहते हैं पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया. एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ गॉट क्रॉनिक किडनी डिजीज़. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैज़ बीन डिवाइडेड इन 5 stages. Stage 5 is when both the kidneys they function less than 15%. Then that is the stage when dialysis and kidney transplant is required. Stage 4 is when functioning of the kidney is between 15 and 30 ml per minute. And stage 3 is 30 to 60 ml per minute. And stage 2 is 60 to 90, and more than 90 is stage 1. So these are very, very important stages. What are the common causes of chronic kidney disease? Diabetes and blood pressure. They are very important causes of chronic kidney disease, accounting for more than 65% of the patients of chronic kidney disease. We have got about 400 patients of end-stage renal disease on dialysis with me. 50% of them, they are diabetics. So diabetes is a very important cause of chronic kidney disease. Chronic glomerulonephritis, गुर्दे में सोजन आना, less than 40 years of age, it is one of the commonest cause of end-stage renal disease. Congenital or hereditary problems, Alport syndrome, Fabry's disease, ये भी important कारण है किडनी डिजीज़ के. क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, पेन किलर खाने से, भस्म खाने से किडनी खराब होना, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी से, किडनी स्टोन डिजीज़ से किडनी खराब होना, ये कुछ और कॉजेज़ हैं. एंड जनरली पूछा जाता है सिम्टम्स क्या हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के. यूरिनरी ट्रबल होना, पेशाब ज़्यादा आना, पेशाब कम आना, पेशाब में जो है खून जाना, पेशाब में प्रोटीन जाना, पेशाब करने के बाद तसल्ली नहीं होना, पेशाब रुक जाना, ये इम्पॉर्टेंट यूरिनरी सिम्टम्स हैं. स्वेलिंग आना, स्वेलिंग फेस पे आना, पैरों पे स्वेलिंग आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना,
ये कुछ और सिम्टम्स हैं। लेट स्टेज में जाके ब्लड प्रेशर हो जाना, यंग एज के अंदर ब्लड प्रेशर हो गया, ओल्ड एज में सडनली ब्लड प्रेशर हो जाना, ये किडनी डिजीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है। लेट स्टेजेस में किडनी में भूख मर जाती है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, वेट कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, सांस फूल सकता है, स्वेलिंग आ जाती है, इचिंग होती है, एंड बैठ के खड़े होने में दिक्कत आती है, बेहोशी भी आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सब चीज़ में ये है, किडनी इज़ ए साइलेंट किलर। Patient may not have any symptoms and straightforward can come in stage 5 or end stage disease. यानी सडनली आपने चेक कराया और आपने देखा किडनी खत्म हो गई है। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, नॉट ओनली इन इंडिया बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 70% of the patients of chronic kidney disease are diagnosed straightforward in stage 4 and 5 anywhere in the world, not only in India but America also. So कितनी अवेयरनेस की कमी है किडनी के बारे में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम स्टेज 4 एंड स्टेज 5 में ही पकड़ में आ रहा है। मतलब नॉट ओनली द पब्लिक को नहीं पता है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि इसके बारे में हम चेक कराएं, स्क्रीनिंग कराएं और जल्दी पिकअप करें सो दैट एक्शन ले पाएँ। स्टेज 3 इज जस्ट 20% एंड स्टेज 1 and 2 इज जस्ट 10%। स्टेज 1 and 2 में यदि डिजीज़ पकड़ी जाए तो हम काफ़ी एक्शन ले सकते हैं, उस डिजीज़ को डिले कर सकते हैं, एग्जैक्ट क्या बीमारी है उसको ट्रीट कर सकते हैं, और जैसे किडनी की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, ऐसी दवाइयाँ हैं जो किडनी को ख़राब करती हैं उसको नहीं दे सकते हैं। एंड यदि उसको बाद में डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हार्ट डिजीज़ बड़ी कॉमन होती है क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, उसके रिस्क फैक्टर्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। So early recognition of chronic kidney disease is a very important part. So how do you do screening for chronic kidney disease? Very simple. 3 tests are done. Does not cost more than 200 rupees. Urine routine examination. Urine में protein check करना, RBCs check करना, blood pressure. Very simple test. Blood pressure check करना. एंड thirdly क्रिएटिनिन चेक करना, सीरम क्रिएटिनिन, उससे हम एस्टिमेटेड GFR निकाल जाते हैं। इससे स्क्रीनिंग टेस्ट से बहुत अर्ली हम किडनी डिजीज़ को पिकअप कर सकते हैं एंड उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। द प्रॉब्लम इज इट हैज़ बीन फाउंड कि जनरल पब्लिक की यदि हम स्क्रीनिंग करें तो हमें कुछ एडवांटेज नहीं होता, ना हम उसकी CKD ज़्यादा पकड़ पाते हैं, ना मोर्टेलिटी कम कर पाते हैं। सो द रिकमेंडेशन इज the screening is to be done only for high risk group. Now what is the high risk group for chronic kidney disease? Diabetic patients, ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर जिनको कि ब्लड प्रेशर है, जिनको कि ऑलरेडी किडनी डिजीज़ हो चुकी है या जिनको कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ है, जिनको कि एथेरोस्क्लेरोटिक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या स्ट्रोक हो चुके हैं या पेरिफेरल डिजीज़ है, जो पेन किलर्स खाते रहते हैं, जिनको कि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, लिथियम लेते रहते हैं, ARB ACE इनहिबिटर्स पे हैं, जिनको कि किडनी स्टोन्स हैं, जो कि आयुर्वेदिक दवाई भस्म की फॉर्म में लेते रहते हैं, इन लोगों में ओल्ड एज है, इन लोगों में किडनी डिजीज़ ज़्यादा होने का खतरा है। इनमें रिकमेंडेड है कि हमें एनुअल स्क्रीनिंग इन लोगों में करनी चाहिए। ना ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए। बड़ा कॉमन चीज़ें हैं, राइट, और सिंपल चीज़ें हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्टाइल में क्या है कि हमें जो है रेगुलर खाना जो है बहुत नियमित खाना चाहिए, अपना वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, BMI अराउंड 25 रखना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मिनिमम 1 आवर एक्सरसाइज करिए, 3 to 4 किलोमीटर्स पैदल चल के आइए, आपके लिए है योगा करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल ना ले, बहुत अच्छा है, मॉडरेशन में लेना चाहिए। आपके पेन किलर्स बिना डॉक्टर की राय के ऐसे नहीं खाने चाहिए, पेन किलर से किडनी खराब होती है। सिमिलरली धारणा कि हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ नहीं करती हैं, भस्म जो आयुर्वेदिक हैं वो किडनीज को खराब करती हैं, सो हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसे दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। आपके जो हैं मिनिमम अबाउट
2 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए हमें जो है। यदि वो डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो ब्लड शुगर हमें कंट्रोल रखनी चाहिए। HB अराउंड 7 रखना चाहिए, HbA1c अराउंड 7 रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल रखना चाहिए और अराउंड लेस देन 130। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी दवाई ले रहे हो, कैसी दवाई ले रहे हो। आई मीन दवाई लेने से कोई नुकसान नहीं है, बट ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने से मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी बहुत हाई है। सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। ओबेसिटी नहीं आनी चाहिए। यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिजीज़ है या पास हिस्ट्री है, उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। यदि किसी को किडनी स्टोन डिजीज़ है, ज़्यादातर हम रूरल एरिया में या अर्बन एरियाज में भी स्टोन डिजीज़ के दर्द तो नहीं कर रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी है? नो, किडनी स्टोन यदि है वो प्रिवेंटेबल कॉज है एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर का। उसके लिए हमें जाकर डॉक्टर की राय से यदि ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कराना चाहिए। यदि किसी को यूरिनरी ट्रबल है, ओल्ड एज में मेल्स में बड़े कॉमन है कि आपके प्रोस्टेट बढ़ जाता है, यूरिनरी ट्रबल आती है, तो डॉक्टर की राय के पास जाके दवाइयाँ लेनी चाहिए। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो ईजिली क्योर की जा सकती हैं। तो दिस इज द वे। नाउ what is, it has been found that what is the effect of awareness of chronic kidney disease, कि हम जो काम कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक एंड प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस को अवेयर करना वो द क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि उनको पता होगा, पब्लिक को या जो प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस को पता होगा, वो उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग कराएंगे। जब स्क्रीनिंग कराएंगे तो जल्दी बीमारी को पकड़ेंगे, जल्दी बीमारी को पकड़ेंगे तो डॉक्टर्स को रेफ़र करेंगे, डॉक्टर्स उनको जो है प्रॉपरली इलाज करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। सो दैट हमें एग्जैक्ट बीमारी पता चलेगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का कॉज क्या है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी जो है प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ कम कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का किडनी में होता है उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और हीमोग्लोबिन कम होना, बोन डिजीज़ है, वो सब चीज़ें भी टेक केयर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ज़्यादातर हम किसी पेशेंट एडमिट होता है उसको हम पेन किलर्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं, तो उनकी डोज भी मॉडिफाई करके या ना दे के, सो दैट द किडनीज जो है डैमेज ना हो और उनको किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी हुई अमेरिका के अंदर। इंडियन अमेरिकन्स और इंडियंस एज सच, they are more prone to get kidney disease. Ethnically, we are more prone to get kidney disease as well as heart disease. 1996 के अंदर इंडियन अमेरिकन्स ने देखा गया, इट हैज फाउंड कि बहुत ज़्यादा किडनी डिजीज़ हो रही है उन लोगों के अंदर। देन अवेयरनेस ग्रुप वॉज क्रिएटेड, इंडियन हेल्थ सर्विस किडनी डिजीज़ प्रोग्राम दैट वॉज क्रिएटेड, और उन्होंने लोगों को अवेयर किया, पब्लिक को एज वेल एज प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस को, एंड उसके ऊपर एक्शन लिया गया। टारगेटेड थेरेपी, कितना ब्लड शुगर रखना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए, एंड व्हाट दे हैव फाउंड आफ्टर 25 years, the percentage of people, Indian Americans developing end-stage renal disease decreased by around 50%. This is very important. Whereas during this period, the end-stage renal disease in white population increased by 10%. So end-stage renal disease, whites में increase हुआ, but Indian Americans में कम हो गया because of these programs. हमारे पास 3 pillars of treatment हैं chronic kidney disease को treat करने के लिए। एंड डायबिटीज़ में डायबिटीज़ कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ARB एस इनहिबिटर्स देना। एंड द क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में 2 पिलर्स हैं। वन इज़ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ARB एस इनहिबिटर्स देना। पिछले 20-22 साल से यही था हमारे पास में, 3 चीज़ें थी। बट नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग हैज़ कम इन, जिसने की बहुत लाइफ इन लोगों की बदलेगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एज वेल एज डायबिटिक किडनी डिजीज़ की। दिस इज SGLT2 inhibitor, very simple drug, costs just 10 rupees per day. By taking this drug in a diabetic or non-diabetic patients, and it decreases the progression of kidney disease by 50%. So not only the progression of kidney disease, it also decreases heart disease, and it also decreases mortality. डेथ भी कम करती है, एंड हार्ट डिजीज़ भी कम करती है, वेट भी कम करती है, एंड सिंपल 10 रुपीज़ कॉस्ट करती है। एंड दिस इज द वन ड्रग इन द लास्ट 20 years, फॉर द फर्स्ट टाइम in the history of nephrology, 1A recommendation has come in. 1A is, that is a recommendation,
and not a suggestion. And A means that if you give this drug, and whatever the effect I am saying, that will be there. It is not that it will not be there. So very, very important for the public and everyone to understand that this is such a good drug. One should go to a learned doctor and ask him whether he can take this drug or not, and ask the doctor. You don't have to take it yourself. Always go to your doctor. He will see whether you can take this drug or not. But kidney disease patients, this is a very good drug. Now generally question आता है, when to go in for dialysis and kidney transplant. जब किडनी आपकी दोनों किडनी मिला के लेस देन 15% काम करती हैं तो हम कह देते हैं किडनी खत्म हो गई, इसको डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है. This is data I would like to tell you. About 3 lakh patients of end-stage renal disease every year in India are added to the existing pool of end-stage renal disease patients. Very sadly, only 10% patients are able to get some form of treatment. Some form of treatment means conservative treatment with the drugs or by dialysis. 90% patients, they are not able to get any form of treatment. Maybe because of the financial reasons, because non-availability of doctors, or living in remote areas, or not awareness of this disease. And another very important aspect is that out of these 3 lakh people, only 7,000 people are able to get kidney transplant. It means just 2% people are able to get kidney transplant. 98% people, they are not able to get kidney transplant, and the reason for that is the availability of organs. In India, the organs are available in the 1995, the organ transplant bill came in, and then the cadaveric transplant was started. The cadaveric transplant, unfortunately, दिल्ली के अंदर नॉर्दर्न इंडिया में इतना पिकअप नहीं कर पाया. महीने के अंदर, साल के अंदर इन दिल्ली में अबाउट 1000 ट्रांसप्लांट्स होते हैं, उनमें से 20 ट्रांसप्लांट भी कैडावरिक नहीं होते हैं. वेयरएज इन चेन्नई 1000 ट्रांसप्लांट वहाँ पर भी होते हैं, बट 400 से 500 ट्रांसप्लांट कैडावरिक होते हैं. कैडावरिक मतलब जिन लोगों के ऐसे पेशेंट जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनका हार्ट चल रहा है पर ब्रेन डेड हो चुके हैं, वेंटिलेटर पे हैं, और उनकी परमानेंट ब्रेन डैमेज हो चुका है, इनको हम कहते हैं कैडावरिक ट्रांसप्लांट्स. एंड ऐसे में आपके जो है ये जब तक ये प्रोग्राम पिकअप नहीं करेगा तो हमें डोनर्स नहीं मिलेंगे. हमारे पास कोई डेड बॉडीज़ की कमी नहीं है, डेड बॉडीज़ तो बहुत हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, बट हमारे यहाँ जो है हम अपनी डेड बॉडीज़ से बड़ा प्यार करते हैं, हम इसको जलाना चाहते हैं साथ में. बट वन डेड बॉडी कैन गिव लाइफ टू 8 पीपल. लिवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, so many things can be given, right? So I think this is another point. Awareness about the kidney, kidney donation is a very, very important part of the awareness program. And कॉर्निया के बारे में तो काफ़ी अवेयरनेस है, आई के बारे में, बट किडनी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है. लोगों के दिमाग में डर है. एंड ज़्यादातर डायलिसिस के बारे में कहा जाता है कि डायलिसिस के शुरू कर दिया पता नहीं क्या हो जाएगा. I can just tell you, things have changed. Patients are on dialysis with me from the last 20 years. They come twice a week or thrice a week dialysis with good quality of life. And cost is around maybe 20 to 30,000 rupees per month to the patient. And you see, but they are living, they're doing their jobs, and you will not be able to recognize that they are on dialysis. So positive thinking के साथ में तो डायलिसिस भी बड़ी अच्छी चीज़ है, पर नेगेटिव थिंकिंग के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. डायबिटीज़ एंड स्टेज डिजीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है. अबाउट 40 to 50% जो एंड स्टेज डिजीज़ पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक्स ही होते हैं. बट ये कहना कि सारी डायबिटीज़ की किडनी खराब होती है बिल्कुल गलत है. ओनली 40% ऑफ द डायबिटीज़ की किडनी खराब होती है, 60% की किडनी खराब नहीं होती है. And we can identify this 40% group quite early. Quite early means 20 साल पहले भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये डायबिटिक है जिसकी बाद में किडनी खराब होने का डर है. वो क्या चीज़ें हैं जो हम आइडेंटिफाई करा सकती हैं? यदि वो उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है.
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ इन द फर्स्ट 10 years ऑफ द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। यदि उसने जैसे डायबिटीज़ शुरू हुआ और डायबिटीज़ पहले 10 साल में अनकंट्रोल था, बाद में जितना मर्जी कंट्रोल करे जाए, बट उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट 10 years ऑफ द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ में अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, तो उससे उसको किडनी डिजीज़, हार्ट होने का डर रहता है। ब्लड प्रेशर किसी को है और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, उसमें उसको किडनी डिजीज़ होने का डर रहता है। जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ है, उसको डायबिटिक पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिजीज़ है, उसको किडनी डिजीज़ होने का डर रहता है। ओबीज पेशेंट है, ओबेसिटी है उसको, उसमें डायबिटीज़ होने का डर रहता है। ज़्यादा एज है, अर्ली द ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटिक्स, मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटिक किडनी डिजीज़। यदि एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, 60 साल की उम्र में उसको डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, उसमें डेवलपिंग किडनी डिजीज़ के चांसेस कम है। यदि एक 20-25 साल का बंदा है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, उसको किडनी डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यूरिन के अंदर यदि किसी को एल्बुमिन जा रहा है, इसको हम लेस दैन 30 मिलीग्राम एक नॉर्मल एल्बुमिन होता है 24 आवर्स में, 30 to 300 हमारा मॉडरेट इंक्रीज होता है, जिसको कि हम माइक्रो एल्बुमिनूरिया भी कहा करते थे, एंड मोर देन 300 मिलीग्राम को स्वेयर एल्बुमिनूरिया कहते हैं। यदि किसका एल्बुमिन 30 to 300 के बीच में जा रहा है, जहाँ मोर देन 300 जा रहा है, now this is a patient who is likely to develop progression of kidney disease. At that time उसका creatinine नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है, पर यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रहा है, या यदि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, दिस इज द पेशेंट हु माइट डेवलप किडनी डिजीज लेटर ऑन, एंड दिस इज द पेशेंट हु इज लाइकली टू गेट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आल्सो लेटर ऑन। सो ये इंपॉर्टेंट, स्मोकर कोई है, हेल्थ का ख्याल नहीं करता है, तो जिनका कि बर्थ हुआ, जिनका लो बर्थ वेट था, तो ये ज़्यादा लोग हैं जिनकी बाद में किडनी खराब होने का डर रहता है डायबिटिक्स में। Thank you so much, Dr. Agarwal, for enlightening such important areas about kidney health. I am sure that the learnings from today's session will help everyone to detect kidney disease before it occurs. We all know that prevention is better than cure. The awareness session today has been initiated with an endeavor to spread awareness about kidney health by Sri Balaji Action Medical Institute. With this, we conclude the session. We request all the listeners to put their questions in the comment box if in case they have any, and we'll be happy to address all those questions. Thank you so much.